25 years back, क्या थॉट प्रोसेस से कोई आके गुड़गांव बाय करता था? जो कि लोग कहते हैं ना, अरे पटाखा बजेगा, इतना आदमी जा रहा है, किसी दिन तो थकेगा। आते हुए 9 बजे, जाते हुए 6 बजे, वहां पे खड़े हो जाओ, यू हैव द आंसर। वो एक दिन था जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो आज का एंड यूजर जब मैं मिलती हूँ, वो मुझसे स्टैम्प ड्यूटी तक भी कैलकुलेट करा लेता है कि ये क्या लगेगी। Women who came, achieved, thrived, and conquered. Today we have a special guest on our platform who has experience of more than 25 years in real estate. This woman has worked with multiple companies at a leadership level. She has been part of leadership of Bestech, Emaar, and Vipul. And now she is managing the portfolio of Ultra HNIs. She came into real estate around 25 years back, जब कोई भी एस्पिरेंट रियल एस्टेट को एक सीरियस करियर नहीं लेता था. This lady has become an inspiration to a lot of women out there in the market, and she has achieved success through her integrity and ethical practices. So here we welcome Mrs. Anita Agarwal, who has experience of more than 25 years in real estate. So let's talk real estate. Welcome to our platform, ma'am. Thank It's a privilege to have you here. The lady with the experience of more than 25 years in real estate. मतलब आपने real estate उस time join किया था जब normally women didn't see real estate as a major career. So we have learned a lot from you. In fact, you were my boss in one of the assignments that we did together, and I've learned a lot from you. And in fact, you have given a lot to this real estate industry, and a lot of other women has been inspired by your career journey in real estate. So I think we thank you again that you are here on our platform to give a lot of information about the market and your journey to our viewers. Thank you so much. You are being so generous in my introduction itself. And it was really lovely working with you together. As regards to real estate 25 years back, let me tell you, 25 years back, even women going out to work was not all that common, and with it, real estate was kind of, there are three parties to it: builder, buyer, and broker. Three parties to it. So nowhere women were very active. Even women were active, they were in backstage. Yes. So maybe legal side, maybe architecture or other things. And I still remember when I joined real estate, and it was, and I am proud to mention that I was the first person to join that company. They are known as Bestech. Now they are a very big company, and I was the first employee. Okay. So First employee and first lady employee. first lady employee, both. Even my boss joined after 7 days from me. Okay. So the thing is, there, when you join something at such an initial stage, your learning is tremendous. Right. It's kind of, plant ko abhi seed kiya hai, so you will see the complete journey. Right. As a lady, I can say, you conceptualize and you've seen things delivering. Right. Besides this, and in those time, it's not only sales which you do, the recruitment of team, what all departments you will have. Of course, sales and customer service, those were my primary areas. Right. But with it, because you have to do applications, you have to do allotment letters, documentation, builder buyer agreement, looking at the land papers. So learning was tremendous in terms of, real estate knowledge in depth. It was not that just going out and being a fancy face and showing things. It was a real learning of मतलब interacting आपने with. स्क्रैच से Yeah. समझा कि एक लैंड के डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे ठीक होते है, लैंड हैं। एक्विजिशन कैसे होती है, उसके बाद लाइसेंसिंग कैसे होती है, उसके बिल्डिंग प्लान्स कैसे Yes. जमा होते हैं, एक प्रोजेक्ट को कैसे कंसेप्चुलाइज किया जाता है और लॉन्च किया जाता है. Yes. So, yes, as you rightly summed it up. So, from licensing to, getting that as a pre-sales activity, क्या आना चाहिए, रेजिडेंशियल था, क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या साइज होना Right. चाहिए, उस तरह की मीटिंग, लैंडस्केप्स कैसे होने चाहिए. क्लब वॉज काइंड ऑफ, उस जमाने में आ ही रहे थे क्लब. टुडे यू सी लॉट ऑफ swanky clubs in those times, like, इतना नहीं था. So, then, banking tie-ups, that was also an integral part of any residential thing. So, I feel really blessed. I came in this at that time, and somehow, now I realize, I think I was born to do this. And in fact, Yeah. मतलब you are very humble that you're saying that you have been blessed, but at the same time आपको शायद पता नहीं है कि आपने you have added a lot of value to this industry. क्योंकि ना देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. I joined real estate in 2006. Yeah. Okay, so that was my campus placement, and DLF was my first company. Yeah. तो जब मेरा कैंपस हुआ और मैं घर गया
मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरी रियल एस्टेट में नौकरी लगी है, तो माई पेरेंट्स वर नॉट दैट मच हैप्पी। वो कहते हैं यार रियल एस्टेट में नौकरी है तो ब्रोकर, मतलब उस टाइम तो वर्ड भी दलाल यूज करते थे या ब्रोकर यूज करते थे, एजेंट तो वो करेगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये वो है कमर्शियल लीजिंग है, वो बिल्डिंग्स आपने देखी, वो शप वाले बिल्डिंग है। तो उस टाइम मुझे लगता है कि लोगों को भी ज़्यादा नो हाउ नहीं था अबाउट द रियल एस्टेट, और बहुत ज़्यादा मेच्योर भी नहीं हुई थी मार्केट उस टाइम, एंड ऑर्गेनाइज नहीं थी। पीपल वर नॉट टेकिंग इट एज अ सीरियस करियर स्ट्रीम एट दैट टाइम। बट चलो हमने तो लिया, ठीक है। सो माई वॉज मतलब इट वॉज बाई चांस, आई डेंट हैव मच चॉइस, सो आई टुक इट। बट you as a lady have shown light to lot of women, those are now joining in and they are taking your path, so that's a great thing. तो मैम मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था। वुमेन इन रियल एस्टेट वाज नॉट दैट कॉमन एट दोज टाइम्स व्हेन यू जॉइंड, सो हाउ यू एंटर्ड, कैसे ये हुआ? ओके, सो आई वाज आउट एंड आउट अ सेल्स पर्सन। जब मैं कॉलेज में थी तो समहाउ नंबर्स अट्रैक्टेड मी, हमेशा से मैथ्स ठीक ठाक था। शायद लोगों की ऐसी एजम्पशन है, फीमेल्स का होता नहीं है, बट ठीक ठाक था। आई थॉट जैसा हम सब सोचते हैं कि अब बीकॉम हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चलो सीए करते हैं। सो आई वेंट टू गिव एन इंटरव्यू। आई स्टिल रिमेंबर, नेहरू प्लेस में एक ऑफिस था, वॉक इन इंटरव्यूज था उस जमाने में। आई वेंट आर्टिकलशिप करूंगी, एंड द गाय जो इंटरव्यू ले रहे थे, ही वाज एन एजेड गाय। He was looking at me at the reception, and I was kind of, fresher out from college, excited, and I started interacting with people sitting there for the interview. Maybe today I think I wanted to judge इनमें कितना दम है, क्या है, मेरा होगा नहीं होगा, बिकॉज जब आप इंटरव्यू पे जाते हो आप ये नहीं सोचते हो कि ये सही है गलत है। मेरा हमेशा से एम होता है जो कर रही हूँ ये तो मिलेगा, तो जब मैं इनसे मिली गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छे रहोगे। मैंने कहा सर पर मैं तो इसके लिए आई हूँ, अकाउंटिंग के लिए। कहता है इसमें आप, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थे, तो आप चश्मा लगा के और इसमें हो जाओगे, आप इसके लिए बने नहीं हो। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगा? कहते मैंने आपको बाहर इंटरेक्ट करते देखा है लोगों से। टुडे आई थैंक दैट पर्सन, इतना सा उनका ऑब्जर्वेशन ने मुझे ये राह दिखाई कि मुझे तो सेल्स में जाना है। और हमारे ये बात मैं बता रही हूँ 30 साल पहले की, तो 30 साल पहले एक फीमेल को सेल्स करना यंगल के लिए, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ वैसी होती थी जो आप जा के सेल्स कर रहे हो, तो ना तो उतना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, ना कनेक्टिविटी थी, ना उतना सेफ माना जाता था, ना कॉमन था, कुछ भी नहीं था। बट स्टिल जब मुझे करना था तो मुझे करना था। सो भगवान ने मुझे चांस भी दिया और मैं कार लोन इंडस्ट्री में चली गई। उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे अभी भी याद है, 21.75% पे मैंने कार लोन बेचा। तो स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक के कार लोन से बेच के मैंने अपना करियर शुरू करा। सो आई उसमें उस जमाने में इट वाज लिटिल डिफरेंट देन लाइक टुडे वी डू इन रियल एस्टेट कि आप ये ले लो बढ़ जाएगा। तो CLO was the first car to enter to India as a imported car, and मेरा जॉब ये था कि मुझे लोगों को लोन बेचना है जो 6 महीने के लिए कंपनी फंड कर रही है, इंटरेस्ट के उन्हें पैसे देने, और जब गाड़ी निकलेगी तो ये अलॉटमेंट होती थी। तो जब इसकी अलॉटमेंट होगी तो प्रॉफिट आप ले लोगे और अलॉटमेंट लेटर बेच दोगे। तो मुझे इन्वेस्टर, मतलब ये कार के इन्वेस्टर हैं जो मुझे अट्रैक्ट करने, तो मुझे लोकेशन मिली कनॉट प्लेस। तो उन्होंने कहा नहीं आप बहुत ही आंगो, आपको नहीं देते। मैंने कहा नहीं मुझे कनॉट प्लेस लेना है। खैर मेरा रीज़न कुछ और था, मेरे पापा वहीं काम पे जाते थे लाइक पार्क स्ट्रीट, तो आई सेड यहीं जाना है। ठीक है, आई वॉज द हाईएस्ट सेलर फॉर दैट प्रोडक्ट, बिकॉज एक टाइम ऐसा है जैसे कि कनॉट प्लेस में होता था, जो लंच टाइम होता है तब सारे लोग आ जाते हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं खुद इतनी छोटी सी में भी, मैं 21 साल की, 21-22 साल की, और वहाँ पे और सरकारी सारे महकमे हैं, तो 40 से 50 साल के आज मैं सोचती हूँ लोग होंगे, और मैं थोड़ी थी अपनी स्कीम में, ये मैथमेटिक्स है, आप ये देंगे, आपके 6 महीने के लिए कंपनी लगाएगी, अलॉटमेंट आएगा, ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप लेटर बेच देना। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम में जो अगली गाड़ी आई थी फोर्ड की, लोगों ने 70 हज़ार रुपए, ये मैं बात कर रही हूँ 1995 की, अलॉटमेंट लेटर बेच के कमाए। तो ये मेरा, आप कह सकते हो, सेल्स का पहला एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने इतना अच्छे से किया तो समहाउ मैं वो कार लोन सेल्स में लग गई। तो वो मोस्टली ऑफिस से हो जाता था, फिर क्लाइंटेल बनी। धीरे धीरे करके मैंने कहा कुछ नया ट्राई करें, तो इंटीरियर प्रोडक्ट्स की एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। सो उनके सारे ही इंटीरियर प्रोडक्ट्स थे, लाइक लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, उस टाइम इंडिया में लॉन्च हुई थी। स्विच करा, उनको ज्वाइन करा। उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने वो भी इंटीरियर्स में ही थी, तो छोड़ के उसने सैमसंग का लग्जरी टीवी की रेंज बेचना सैमसंग ज्वाइन किया। सो उसके लिए वो गुड़गांव आई। किसी एक बिल्डर है जिनका होटल बन रहा था, तो उसके लिए उन्हें टीवी बेचने थे, काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेल्स था। तो और मैंने उन दिनों गुड़गांव में घर लिया था, तो टारगेट तो था कि दिल्ली से, आई यूज्ड टू स्टे इन साउथ दिल्ली, कि यहाँ मूव होना है। तो माय सिंपल एम वाज कि गुड़गांव में नौकरी मिले।
तो जब वो आई तो उन्होंने ऑफर करा कि हम एक रियल एस्टेट डिवीजन ला रहे हैं और हमें ऐसे ही एक सेल्स में वी नीड अ स्मार्ट वुमेन विद शार्प ब्रेन। तो शी सेड मैं तो ईस्ट दिल्ली रहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरी फ्रेंड है, शी इज मूविंग। दिस इज हाउ यू नो एज द लक सेज। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और फिर उस कंपनी के जो ओनर्स थे मैं डायरेक्ट मिली। जैसा मैंने बताया मैं पहली एम्प्लॉय थी, तो ऑफ कोर्स मुझे रियल एस्टेट उतना नहीं पता था उस टाइम में, बट वो मुझे मिले somehow, बट आई हैड दैट कॉन्फिडेंस। बेच तो लेंगे कुछ भी। फॉर सेलिंग यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट क्या है, बायर क्या है, उसका ब्रेन क्या सोच रहा है, अब मुझे एक्ट करना है, मुझे क्या करना है। तो खैर सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड, और वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद तो खैर फिर ईमार ज्वाइन किया, आपके साथ वहाँ काम किया, सो जर्नी चलती गई। तो मैम ये जो आप बोल रहे हैं कि आपने ज्वाइन करी रियल एस्टेट में, दिस वाज व्हिच ईयर? दिस वाज समथिंग अराउंड 2000. 2000. Around 2000. So I can say that you have been into real estate for almost around 25 years now, approximately. Yeah. So मैं इसी से ही एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि how much the market has evolved. आपने 25 साल पहले की भी मार्केट देखी है, अब आज की भी मार्केट देख रहे हो, हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या इवॉल्वमेंट है? देखो सबसे बड़ा जो इवॉल्व हुआ है वो ये है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो बायर है, चाहे वो बिल्डर है, बैंक्स हैं, सभी ने अपनी अपनी, कहते हैं कि जैसे एक पत्थर है, जितना ज़्यादा घूमता है शेप लेता है। राइट, कोई भी चीज़ एक नेचुरल शेप लेती है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी आई इसके अंदर। राइट, तो इसकी जो आस्पेक्ट, मैं स्पेशली अगर सेल्स की बात करती हूँ कि पहले कैसे बेचा जाता था, बायर माइंडसेट क्या था, और आज कैसे बेचा जाता है, बायर क्या सोचता है। तो आज से 20-25 साल पहले आप कहेंगे तो मैं समझती हूँ कि जो इन्वेस्टर होता था बहुत लिमिटेड होता था, Okay. बहुत लिमिटेड। लाइक फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं, रियल एस्टेट देखिए अपने आप में कोई इंडस्ट्री नहीं है। रियल एस्टेट जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब अच्छा करती हैं तो हम अच्छा करते हैं। राइट, राइट, तो इसका दो चीज़ों से सीधा सीधा संबंध है। एक तो संबंध है पॉपुलेशन सेंट्रिक डेवलपमेंट विच इज़ देयर इन नॉर्थ इंडिया, लाइक दिल्ली एनसीआर। राइट, राइट। सो वो लोगों का मूव होना, तो डिमांड तो वहाँ से आपकी आती है, जॉब्स। उसके साथ पैसा कहाँ से आया, लोगों के पास पैसा आने लगा, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, सब हुआ। तो जो एक तो है बाइंग साइकिल में जो फर्क आया लोगों का, जो आदमी एक लगाता था 15 साल बाद कुछ और करता था, बच्चे करते थे, वो आदमी मल्टीपल करने लग गया। दूसरा एक नया बायर आ गया जिसको समझ में आया कि क्योंकि मेरी एवरेज तनख्वाह इतनी है, और ये बात सच है कि हमें सादा जिंदगी गुजारने के लिए तो उतने ही पैसे चाहिए। राइट, अब मेरी तनख्वाह बढ़ गई तो मेरे पास अगर डिस्पोजेबल इनकम है तो मैं क्या करूंगी। एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि हम भारतीय हैं और हमें बहुत शौक होता है जोड़ने का, पैसे जोड़ने का, और जमीन से जो प्यार है वो राजा महाराजा के टाइम से ही है हमें। तो मुझे लगता है कि जब हम पहले बेचा करते थे तो हमारे पास जो आता था वो एक लंबा होराइजन एक तो लेके चलता था, और जो बेचते भी थे उसमें भी जो हमने कह दिया, क्योंकि लिमिटेड प्लेयर थे, दोनों तरफ ही लिमिटेड प्लेयर थे। राइट, आज चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज है, उसका एक मेन रीज़न है रेरा आ गया। चलिए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, अकाउंटेबिलिटी हाई है, बिल्डर के लिए भी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, क्या सही है गलत है, और हर तरह से आपको सरकारी वेबसाइट से लेके आम आदमी के ओपिनियन तक सब मिलता है। बिल्कुल। पहले जब बेचा जाता था तो चीज़ें कई बार तो हम मजाक में करते हैं, पर्ची भी होती थी, अगर आपने राइट, सुने राइट, होंगे। राइट, राइट। आज के दिन में आपके पास ना कि पूरा बिल्डिंग का प्लान, डिजाइन, सब कुछ है, क्या कहाँ होगा। तो आज हर तरह के, आई से कि बहुत चीज़ों ने इसे बदला है, कोई मैं एक चीज़ को इसका क्रेडिट नहीं दूंगी। हम लोग सभी काफ़ी इवॉल्व हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन रियल एस्टेट जो आई है, और सरकार ने जो ऑर्गेनाइज किया है, उसके अलावा जो हमारी इवन रियल्टर्स की भी जो फॉर्मल एसोसिएशंस हैं, राइट, बहुत मेहनत की है कि उस पूरी इमेज को चेंज करें। राइट, तो आज के दिन में तो मैं समझती हूँ रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट है, राइट। जिसको कि आप आज एनालाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या मिलेगा, उसको सोच सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी इज दी लाइव एग्जाम्पल। तो दूसरा एक तो खैर एक चीज़ होती है कि आपके पास इतने सारे टूल्स हो गए, राइट, राइट। दूसरी बात होती है कि कस्टमर को ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन मिल गया कि रेरा में प्रोजेक्ट Reforms आ है, गए। एस्क्रो में पैसे जाएंगे, रिफॉर्म्स आ गए सारे, राइट, आपको श्योरिटी हो गई। Right. तीसरा है कि मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टर बेस भी बढ़ता गया। राइट। तो आई स्टिल सी दिस अ लॉन्ग वे टू गो। यस, आई एग्री मैम। लेकिन मैं अभी भी ये समझना चाहूँगा, 25 साल पहले जब आपने पहला अपार्टमेंट बेचा होगा या पहला प्लॉट बेचा होगा, उस टाइम गुड़गांव को लेके, क्योंकि गुड़गांव तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, 25 ईयर्स बैक, हाँ, क्या थॉट प्रोसेस से कोई आके गुड़गांव बाय करता था? देखो अगर आप ये देखें, अगर मैं कहती हूँ चलिए लिमिटेड इन्वेस्टर भी हैं, तो लोगों को एक बात तो समझ में आई कि जहाँ भी मेच्योर मार्केट हो जाता है
तो हमारे पास शुरू में सारा बायर आता था साउथ दिल्ली से, क्योंकि गुड़गांव इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ दैट। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो बहुत साउंड होते थे पैसे से, जिनको पता होता था कि आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाऊंगा शायद पैसे बढ़ेंगे, राइट। तो शुरू में वही बायर आता था, एक्सेप्ट न्यूज़पेपर एड एंड होर्डिंग, कोई और मीडिया नहीं था कि आप को बायर तक पहुंच पाओ। तो आपके पास या तो होते थे रेफरेंसेस, और उसमें भी जो पुराना इन्वेस्टर है वो हर बिल्डर के लिए लॉयल होता था, जैसा हम जानते हैं। तो नए बिल्डर के लिए उतना आसान नहीं होता था, ना ऐसे स्कीम्स होती थी, ना ऐसा सब होता था। तो जो सेलिंग स्टाइल भी था, तो अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो ये जो सैंपल फ्लैट, शो फ्लैट बनने भी शुरू हुए थे, ये भी कहीं 2002-3 के आसपास ही हुए हैं। उससे पहले ये भी नहीं होते थे। एक ब्रोशर होता था, एक बुकलेट थी, वो भी उतना फैंसी नहीं होता था, बिकॉज देखिए लीडर्स में उस टाइम में डीएलएफ होता था, यूनिटेक होता था, अंसल्स होता था, तो ट्रस्ट होता था, कम लोग होते थे, खरीदार भी, बेचने वाला भी। खरीदार का मैं ये मानती हूँ कि उस जमाने में भी एक विजन होता था बेच कि मुझे इतना आगे जाके लेना है। तो इवॉल्व इस तरह हुआ है कि आज हमें लोगों को इन्फॉर्म करने के, लोगों तक रीच करने के तरीके बहुत ज़्यादा हो गए। तो रिफॉर्म्स एंड रीच दोनों बहुत बढ़ गए। I agree. Ma'am, how you say that women are becoming driver of real estate and taking real estate as a serious career? सी इफ यू आस्क मी, मुझे आज भी लगता है, अगर मैं आपको वेस्टर्न कंट्रीज में जो रियल एस्टेट में फीमेल्स हैं, इट्स 56% और लाइक यू नो 56% इन रियल एस्टेट, विच इंक्लूड्स कि बिकॉज आपके ऑफिस में बिल्डर के यहाँ भी हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फॉरेन के अंदर 100 लोग हैं, तो 56 के करीब फीमेल हैं। इनफैक्ट रियल्टर भी उतनी ही है। ओके, रियल्टर एंड टाउन ब्रोकर, जिसको हम ब्रोकर्स कहते हैं, राइट। वेयर एज इंडिया में आज भी अगर हम कंपनीज की भी बात करते हैं, 18-20% से ज़्यादा नहीं है, एंड ब्रोकर रियल्टर लेस देन 2% है आज भी। तो जो आप कह रहे हैं कि अभी जो फीमेल्स एंटर कर रही हैं इस इंडस्ट्री में, देखिए क्या होता है कि जब भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, एंड स्पेशली जब लग्जरी आ रही होती है, सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ ग्लैमर। शुरू ये वहीं से होता है। अगर आपको याद हो, पहले बड़ी गाड़ियां आती थी तो उसके साथ पहले एड की मॉडल शुरू होती है, राइट, वहां से शुरू होता है। लेकिन इसको सीरियस करियर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत घुसने की ज़रूरत है। बट मुझे आज बहुत खुशी होती है ये देख के, आज मुझे इतनी फीमेल्स दिखती हैं, और मेरी एक्चुअली सलाह सबको यही होती भी है और है भी, कि रियल एस्टेट में बिताया हर दिन, अगर मेरे में भूख है ना सीखने की, तो हर दिन मेरे एक्सपीरियंस में काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यू क्रॉस 50 एंड यू से आप तो 55 पे रिटायर होते हैं, लाइक आप किसी भी नौकरी में हो, रिटायर होते हो, मैं कहती हूँ कि तब आपकी वैल्यूएशन और बढ़ती है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये है नॉलेज और एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट। इसको कोई एक दिन में किसी को नहीं दे सकता है। तो किसी भी विमेन को, पहली बात तो खैर खुशी की बात है कि जो मैं पहले देखती थी, आज बहुत सारी फीमेल हैं, आउट ऑफ देम कई सारी इसको सीरियसली ले भी रही हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। So especially in residential, because for a female to talk about a home, it's kind of a natural instinct. Right. अगर किसी को, and looking at any sample, they can like say. In fact, इसी पे आने वाला था कि वुमन क्या एस्पेक्ट लेके आती हैं रियल एस्टेट में। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, टॉकिंग अबाउट ए हाउस, टॉकिंग अबाउट इट्स इंटीरियर्स, टॉकिंग अबाउट द किचन एंड एवरीथिंग, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। सो उनकी जो एनालिसिस है, तो जब वो किसी और को भी इसके लिए कन्विंस करती हैं, तो वो उनके दिल से आ रहा है, उनको कोई आर्टिफिशियल आई डिफरेंट है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड करियर। आई वुड से यस, फीमेल्स को जितना आ रही है और आना चाहिए, और सीरियसली से सोचना चाहिए। सो मैम, एज ए वुमन, आपको क्या लगता है कि आपने क्या चैलेंजेस फेस करे होंगे बीइंग इन दिस इंडस्ट्री? सी, एज आई टोल्ड यू, पहले मैंने शुरुआत बिल्डर्स के यहाँ से की। तो जब हम बिल्डर्स के यहाँ काम करते हैं, चैलेंजेस सिर्फ यही होते हैं कि भाई टीम के चैलेंज होते हैं कि ये फीमेल है, तो ये रोज़ आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, इतना देर रुकेगी, नहीं रुकेगी, कहीं जाना है तो मे बी सेफ्टी इश्यूज आर टेकन केयर मोर फॉर अ फीमेल, दैट्स इट। बट हाँ, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि जब आपकी कमिटमेंट होती है तो आप कुछ भी करते हो। मतलब मैंने 3-3, 4-4 महीने, नॉट इवन अ सिंगल डे ऑफ, विद अ चाइल्ड ऑफ 3.5 years किया है। तो आप अगर चाहो, आपका पैशन है, तो आप मैनेज करते हो, दैट इज़ वन। लेकिन जब मैं रियल्टर बनी, जब मैं ब्रोकर बनी, तो ऑफ कोर्स आप अब आपके पास वो तबका नहीं है, आपके पास वो कमरा नहीं है। अब आप क्या हो? आप वो हो जो आप अपने आप को
बता सकते हो, राइट राइट? तो जब भी हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो नॉर्मली एक इंसान का पहला रिएक्शन होता है, देयर आर लॉट ऑफ टेलीकॉलर्स एंड यू आर कॉलिंग जस्ट टू सेट अ मीटिंग. राइट सो यस, व्हेन दे मीट यू, देन आपको आपकी नॉलेज, आपकी अथॉरिटी, आपकी ड्यू डिलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एक मेल के कंपैरिजन में आपको एक एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ता है टू Gain द that अदर पर्सन गेन दैट ट्रस्ट कि यस स्मूथली होगा. Right. बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक मेरा जितना भी काम रहा है उसमें मैक्सिमम मैं कह सकती हूँ कि रेफरल बिजनेस है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आई एम श्योर लोगों को ठीक लगा होगा तभी उन्होंने, क्योंकि ये है काम ट्रस्ट का. राइट अगर उनको लगता है कि मैं सही से काम कर रही हूँ तभी वो किसी अपने दोस्त को कहेंगे कि Refer आप इनसे बात करिए, रेफर करिए. तो इट्स बीन गुड. लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जब आप अपना काम करते हो आपको अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ता है. एंड अगर आप गियर्ड हो, आप अपडेटेड हो, आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फुट रखते हो, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी रोक सकता है कुछ करने से. Right. Ma'am, now see, as you have worked at a leadership level at multiple companies like Bestech, Emaar, Vipul, मतलब आप president level पे भी थे, vice president level पे भी थे, आपने बहुत बड़ी बड़ी teams manage करी हैं, जी. and you were integral part of the management decisions. What do you think the bold and the tough decisions that you have taken that has impacted the whole ecosystem? सी जब भी हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो दो चीज़ें होती है कि कंपनी का अपना बिहेवियर एंड नेचर, Right. कॉन्सेप्ट्स आते हैं. दूसरी एक बड़ी चीज़ होती है जो लोग लीडरशिप पोजीशन पे हैं वो उस चीज़ को कितना अच्छी तरह स्प्रेड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते Right. हैं. तो दोनों चीज़ें सपोर्टिव होनी चाहिए. बहुत अलग नहीं चलता, लेकिन हाँ अगर आप अग्रेसिव हो तो वो छुपा नहीं सकते ज़्यादा देर. Right. तो ये वैसा ही है कि अगर एक बॉल यहाँ रखी है तो उसको मैं ज़्यादा देर बोलूँ कि यही स्टैटिक पड़ी रहे, वो होगा नहीं. Right. तो मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 2012 की बात होगी, और हम एक प्रोजेक्ट था, उन दिनों भी सेम ही था जो आज हम EOI कहते हैं, प्री लॉन्च शब्द कहा जाता था, और 112 सेक्टर. आज तो मैं बात करूँ तो सब कुछ है वहाँ, मतलब हम कहते हैं एकदम दिल्ली के साथ है, और है भी. Right. लेकिन अगर हम आज से 12 साल पहले की हम बात करते हैं तो 12 साल पहले सिचुएशन हाँ, ऐसी मतलब नहीं मेरे थी. ख्याल से उस जगह पे पहुंच भी नहीं सकते हो. हाँ, मतलब आप जा सकते, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि रात के 11 बज गए मेरा यहाँ घर होगा. मतलब मैं घर को आज से 4 साल में मुझे घर मिल रहा है, इस चीज़ को मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ. Right. तो एनीवेज मार्केट अच्छा था उन दिनों भी, सपोर्ट था सभी का. तो हमने कहा एक दिन था जिसको कि कहा गया कि आज हम चेक लेंगे, जैसा कि होता है रियल एस्टेट में. तो काफ़ी सारे मार्केट को इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी सब ब्रोकर्स आ गए. तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई होंगे 50-100 लोग, उस हिसाब से पूरी तैयारी थी, और बहुत बड़ा हमारा रिसेप्शन एंड मार्केटिंग एरिया ये था. कौन सी कंपनी की बात कर रहे ईमार में जब हम थे, ईमार। ईमार में थे. तो हमने देखा ये लोग आए जा रहे हैं तो भर ही गया है एकदम से. तो खैर इमीडिएटली एक मैनेजमेंट मीटिंग हुई, तो उसमें कोर पीपल वर देयर. और उस जमाने में, आज तो मैं सुनती हूँ कि 50 लाख की EOI भी लेते हैं, उस जमाने में 5 लाख 7.5 लाख एट द मोस्ट Right, right. दे दिया. मतलब ये इन्वेस्टर साउंड है, ये लेने वाला है. हम्म. तो हमने उस दिन, या हमने कुछ समय पहले हमने बोला ये 15 लाख लेंगे हम, क्योंकि अब लोग ज़्यादा हैं, और देखिए ये तो डिमांड सप्लाई का गेम है. बिल्कुल. तो अब जब डिमांड है तो हमने उसको रेट को 8,500, जो कि हम अभी उस पर भी थोड़ा सा बैकफुट थे. तो वो एक दिन था जो मैं आज तक नहीं भूलती हूँ. नंबर्स में अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है 500-600 प्लस ही लोग होंगे वहाँ पे. तो ये डिसीजन लिया गया कि जी एक तो हमारा ये अमाउंट होगा 15 लाख बुकिंग का, और एक ब्रोकर से हम एक ही चेक लेंगे. बावजूद उसके बाद हमें इनफैक्ट सिक्योरिटी से कंट्रोल करना पड़ा था उसको, और हमने बुकिंग्स करी. नॉट ओनली वो किया हमने, उसके बाद रेट बढ़ाए गए, जिसको कि 2-2 घंटे में रेट बढ़े, कि अगर 8:30 से खुला है तो जितना मुझे याद है 11-11:30 पे रात को 11,250 पे रात को 8 बजे हमने Close. लगाया कि ये क्लोज है. तो वो एक्चुअली उस दिन, वो पूरा ही दिन इनफैक्ट बहुत सारे बोल्ड डिसीजन का था. सो लेकिन खैर रियल एस्टेट हो या कोई भी चीज़ हो, जब हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो खाली बुकिंग लेना ही एम नहीं होता है. Right. क्योंकि आपने 1000 करोड़ की सेल कर दी, लेकिन मेरे को 1000 करोड़ पे अगर 1000 करोड़ आने का साधन भी होना चाहिए ना. तो खैर 2-3 महीने 4 महीने जब इस चीज़ को एनालाइज किया गया तो समझ में आया कि नहीं, ये खाली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ही रह जाएगा, ये पूरा रिसीवेबल्स आना मुश्किल है. दूसरा बोल्ड डिसीजन कंपनी ने और हम सब ने मिलकर कि इसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे. फिर बाद में ये लिया गया कि इसे शेल्व आउट करेंगे, इसे वापस करेंगे, और रीलॉन्च करेंगे एट अ लेटर. रीलॉन्च करेंगे. वो तो खैर अब वो तो आज से 10 साल बाद फिर जो भी हुआ, बट उस समय के जिन्होंने भी पैसे दिए थे उनके पैसे उस समय फिर बाद में वापस हुए.
तो ये मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के लिए भी और एज यू नो बोल्ड स्टेप के लिए भी वो एक दिन था जो जिंदगी भर याद रहेगा। इवन आज भी मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन 2 घंटे में प्राइस बढ़ना ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल चैप्टर है। Yeah, I think I was part of that. यस, यू वर journey देयर विद with अस, you. या हम सब साथ ही थे। और या एक दिन के अंदर इतना बड़ा इंक्रीज आया प्राइसेस के अंदर, लेकिन 4 महीने बाद डिसाइड किया गया कि इस प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट डायनामिक्स उतने सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जी। और ये जो बोल्ड डिसीजंस आप लोगों ने और मैनेजमेंट ने मिलकर लिए, आई थिंक दैट सेफगार्डेड क्लाइंट्स एंड एट द सेम टाइम दैट प्रोजेक्ट। और क्योंकि अगर वो लॉन्च हो जाता, ठीक है, कैश फ्लोज नहीं आते, वो प्रोजेक्ट नहीं बनता, कहीं जो एक्चुअल एंड यूजर्स होते हैं वो बेचारे फंस जाते। फर्स्ट तो दैट वाज अ राइट डिसीजन। राइट डिसीजन। मैम, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि रियल एस्टेट इवॉल्व हुआ लास्ट 25 साल के जी। अंदर। आई थिंक इस इवॉल्वमेंट के साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट डिसीजन नाउ टेकन wherein women are playing a major role, या ठीक है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, रियल एस्टेट में एज यू नो सेगमेंट्स मेजरली अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है एंड रेजिडेंशियल Right. होता है। तो अगर हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ रेजिडेंशियल में 90% डिसीजन एक वुमेन का होता है कि So घर she is लेना part है, of it, she is that part of it। आजकल तो खैर बच्चों का भी होता है, फैमिली का भी होता है, लेकिन एक वुमेन का होता है रेजिडेंशियल में। व्हेन आई टॉक अबाउट एंड यूजर, अगेन इन्वेस्टर तो अलग रखते वो अलग। एक्चुअली इन्वेस्टर सेगमेंट में मुझे अभी उतनी वुमेन नहीं मिली हैं, ठीक है। नहीं मिले हैं मुझे। लेकिन हाँ, अगर रेजिडेंशियल एंड यूजर है 90% वुमेन डिसीजन होता है, और अगर ये कमर्शियल है वहाँ पे इट्स मेल डोमिनेट, वहाँ मेल क्योंकि डोमिनेट। वो दैट इज मोर मैच्योर uh, रियल एस्टेट। One, that is more mature, the stakes are very high। Right. Another, generally people who been doing investment for ages, जैसे कि बाप दादा के टाइम से चलता आ रहा है। I know people जो खरीदते हैं फिर उसको प्री लीज करेंगे, बेचेंगे, फिर आगे करेंगे, and they are doing that as you know their day to day thing। Right. So और दूसरा है मे बी रेंटल इनकम क्रिएट करेंगे, जो कि एक बहुत ही यू नो रिस्क कवरिंग थिंग है। राइट। सो कुछ भी ऊपर नीचे हो तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट आल्सो। कई लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है। मतलब जैसे आपने बताया कि कमर्शियल के अंदर जैसे रेंटल इनकम आती है, और इनफैक्ट द रेंटल यील्ड इज इन द रेंज ऑफ अराउंड 6 to 8%, यस, ठीक है। और उसी के साथ आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है, आप हायर लेवल पे मोनेटाइज भी कर सकते हो उन प्रॉपर्टीज को। लेकिन एक जो फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या अर्ली इन्वेस्टर है, या सेकंड थर्ड टाइम इन्वेस्टर, उनको ये समझाना कि कमर्शियल एसेट भी आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू मेक ए सस्टेनेबल या देखो portfolio। अगर हम इस चीज़ को कैटेगराइज करें नाउ, कमर्शियल में भी 2 तरह का इन्वेस्टर है। एक जिसको मैं कह रही हूँ कि वही वो लिगेसी है, करते चले आ रहे हैं, अलग बात है। उनका फिर टारगेट भी डिफरेंट है कि पूरे पूरे फ्लोर प्लेट बिल्डिंग लिया, वो एक अलग सेगमेंट है। जो अभी आपने एक चीज़ बोली कि मेरी एक रेंटल इनकम हो जाए, तो ऑफ लीड बिकॉज मैं ये काफ़ी कर रही हूँ, जिसके अंदर कि आपको 6.5% फॉर ए ग्रेड बिल्डिंग एंड ए ग्रेड कंपनी मल्टीनेशनल को चढ़ा है तो आपको वो मिल जाती है। सो अभी एक जो सैलरीड क्लास है, जिसने देखिए रियल एस्टेट में सारा ही कुछ आपके पोर्टफोलियो में होता है। पहला आपकी नीड के लिए आप घर लेते हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। तो इट कैन बी इफ यू से मिक्स पोर्टफोलियो देन इट हैज़ टू हैव एवरीथिंग, बिकॉज क्या होता है कि हर समय मार्केट डायनामिक्स है, कभी एक चीज़ एकदम ऊपर जा रही है, कभी दूसरी जा रही है, चलता है। लेकिन मुझे अगर अपनी रिस्क मिटिगेट करनी है तो मुझे ये चाहिए मेरा बिजनेस चले ना चले, नौकरी रहे ना रहे, मेरे को मंथली इतनी रेंटल इनकम आए। Right. तो मैं कुछ ऐसे लोगों से भी काफ़ी मिलती हूँ जो, एंड ये इन्वेस्टमेंट सरप्राइजिंगली 60 लाख 70 लाख से लेके 70 करोड़ तक आप कर सकते हैं। और उसी के जितना हम लगाएंगे उतना हमें मंथली रेंटल आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे अभी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें ले चुके हैं और अब वो ये भी ले रहे हैं। सो बट अगेन एज वी वर टॉकिंग अबाउट वुमेन टेकिंग डिसीजन, तो कमर्शियल में मैंने 1% और 1 or 2% ही है ऐसा, क्योंकि रिसेंटली मैंने कभी प्री रेंटेड किया। नाउ यू नो व्हाइल टॉकिंग टू यू मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी, एंड ये 2 फीमेल हैं जिन्होंने लिया है ऑफिस स्पेस विच आई सोल्ड रिसेंटली, जो रेंटेड है किसी मल्टीनेशनल को। Ma'am, the other thing is कि Gurgaon is expanding. Okay, so are the expectations of developers, buyers and investors. Do you think that the new micro markets और जो थोड़ी untapped micro market है, that has a very good potential in terms of investment and ROI? यस, सी है क्या अभी, पहली बात तो जो हम पहले कहते थे कि गुड़गांव एक दिल्ली का एक्सटेंशन है, भाई जगह नहीं थी, साउथ दिल्ली से इधर बस गया ना, गुड़गांव अपने आप में एक मेट्रोपॉलिटन हो गया। Yeah. और गुड़गांव जैसे कि हम दिल्ली को सेगमेंटेशन करते थे कि भाई साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली,
और अगर हम कहते हैं हर जगह की अपनी एक वैल्यू है एंड हर लोकेशन रिलेटिव है। Right. मेरे लिए ये जगह पास है, जो आदमी ग्रीन पार्क रह रहा है उसके लिए वही सब कुछ है, Right. जो जनकपुरी रहता है उसके लिए वही सब कुछ है। लेकिन इवन आफ्टर सेइंग दिस कि गुड़गांव इतना बढ़ गया है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए या तो अगर मैं मेच्योर लोकेलिटी जैसे कि हम डाउनटाउन कहते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जो इंक्रीज है वो बाद में मार्जिनल होती हैं Right. और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगती है क्योंकि मार्केट मेच्योर है। Mature. तो जब हम जो ये नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, जब हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो वहाँ पे हमारे पास रेंज होती है जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यू हैव ऑप्शंस, यू हैव अपॉर्चुनिटी। व्हेन आई से अपॉर्चुनिटी दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रोथ है, Right. पॉपुलेशन मूवमेंट रिलेटेड ग्रोथ है, तो हम उसका पार्ट बन सकते Growth हैं, story जो का कि part उस ग्रोथ स्टोरी से ही हमें प्रीमियम आनी है। I understand. तो यस, एज यू राइटली सेड, इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, मैं जस्ट ऐसे ही सोच रही थी, ओवरऑल इंडिया की अपनी ये स्टोरी चल रही है। आप हर फील्ड हर सेगमेंट में देखिए, इतनी कंपनीज आ रही हैं जस्ट टू लुक, बिकॉज हम हर चीज़ के अंदर ग्रो कर रहे हैं। Right. सिमिलरली लाइक रियल एस्टेट, क्योंकि कोई भी सेक्टर नया होगा तो वहाँ पे नई चीज़ें आएंगी और उससे आपको ग्रोथ से मिलेगा ही फायदा। Right. I agree. मैम, यू मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है। अब आपका जो क्लाइंट बेस है बहुत बड़ा है, उनके आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, उनको एग्जिट स्ट्रैटेजी, एंट्री स्ट्रैटेजी सब कुछ बना के आप देते हो। एज पर यू, व्हाट यू थिंक, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, व्हिच टू पिक? सी इट्स करंटली इफ आई से क्या हवा चल रही है, यस अपार्टमेंट की है। राइट. क्यों है? क्योंकि आपकी जो डेमोग्राफिक्स हैं, राइट. जो एंड यूजर है, उसको मैं कैसे देखती हूँ। ओ, एक अच्छी सी स्टोरी है, एक याद आ गई जो मेरे संग रियल में हुआ था। कैसे रियल एस्टेट वाला आदमी रियल एस्टेट ही सोच सकता है। तो मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, 11:30 बजे की फ्लाइट थी, 8:30 बजे एयरपोर्ट होना था। मुझे लगा ब्रोशर में तो खैर आधा घंटा लिखा था, 1 घंटे का मार्जिन ले लेते हैं, पहुंच जाएंगे। इट टुक मी 2.5 hours टू रीच IGI एयरपोर्ट। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि कितनी गाड़ियां इस रोड पर हैं जो काम करके शाम को दिल्ली जा रही हैं। देन आई थॉट यही थोड़ी है भाई, MG रोड भी है और मेट्रो भी है। तो आप ये बात सोचिए कि जब इतना आदमी जा रहा है, किसी दिन तो थकेगा कि मुझे गुड़गांव ही रहना है। बिल्कुल. एंड दैट इज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ गुड़गांव, जहां मैं एक अपार्टमेंट के लिए एंड यूजर देखती हूँ। दूसरा, जो आदमी दिल्ली से शिफ्ट हो रहा है, उसको आज दिल्ली में क्या नहीं मिल रहा? उसको नहीं मिल रहा है पार्किंग, उसको नहीं मिल रहा है एक सोशल क्लब कि लैंडस्केप्स हैं, मेरा बेटा स्विमिंग पे जाएगा, यहाँ होगा, या माँ बाप हैं तो उनकी एक सोशल लाइफ होगी, कैफे होगा। ये आज गुड़गांव की कॉन्डोमिनियम में मैंने एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टडी किए हैं, इंडिया एंड अब्रॉड देखा है, घुमा है। गुड़गांव का जितना भी एमिनिटीज है आज के दिन में, इट इज इक्वलेंट टू एनी ऑफ द ए ग्रेड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट स्टिल आई गिव ऑल ब्राउनी पॉइंट्स टू डेवलपर्स कि वो एक लाता है तो दूसरा उससे भी अच्छा ला रहा है। तो हाँ, ग्रेट लाइफस्टाइल। अगर हम अगर ऐसे एक लेमैन की तरह भी सोचें, तो मुझे नहीं लगता, जैसे आपने एक चीज़ ज़रूर बोली जो मुझे भी लगता है सही है, अपार्टमेंट्स चाहिए, ये ग्रो भी करेंगे, लेकिन सब सेगमेंट हो, नॉट ओनली लग्जरी, बिकॉज जो आदमी जा रहा है वो आज हर सेगमेंट हर कैटेगरी का है। तो यस, अपार्टमेंट का रियल यूज़र है। मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को, एंड एट द सेम टाइम जैसे मेरे को भी मेरे क्लाइंट्स के बहुत कॉल्स आते हैं, सौरभ, डू यू थिंक द मार्केट इज गोइंग टू सस्टेन, ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? आई थिंक दिस इज द आंसर। जाके NH8 पे सुबह 9 बजे आप आइए, हाँ, आते हुए 9 बजे, जाते हुए 6 बजे वहाँ पे खड़े हो जाओ। यू हैव द आंसर विद यू कि इतने लोग वहाँ से काम करने आते हैं और जाते हैं, ठीक है। दे हैव द एस्पिरेशन टू बाय अ हाउस इन गुड़गांव, दे आर द बायर्स। जब मैं 2004 में गुड़गांव मूव करी थी सौरभ, साउथ दिल्ली से, एक MG रोड होती थी, ठीक है, और ये NH8 था और इतना वाइड नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता था कि चल जाएगा। अब आप देखिए, देखते देखते कितनी रोड्स बन गए हैं। तो इसी तरह ये जितना, और दूसरी एक गुड़गांव की सस्टेनेबल चीज़ जो मैं बोलूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस काफ़ी करती हूँ। आज इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज आ रहे हैं, तो रेजिडेंशियल हमेशा रिलेटेड है ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल, तो काम करने आदमी आएगा, तो ये एक नेचुरल ग्रोथ और डिमांड हमेशा रहेगी इसकी। तो मुझे अभी भी लगता है कि ये हम जो भी कर लें, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। राइट मैम, एज आई स्टेटेड अर्लियर, मतलब यू आर मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ योर इन्वेस्टर्स, आप एंड यूजर्स को भी मैनेज करते हो, तो आप क्या कहेंगे, हाउ टू क्रिएट अ सस्टेनेबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो? When we say portfolio, first of all, it is a person's own choice, and वो choice कैसे बनती है? पिछले experience से।
रियल एस्टेट में नॉर्मली अगर एक एक्सपीरियंस अच्छा होता है आप वापस से वहीं जाते हो, बिकॉज हमें जैसा कि पता है अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें लैंड है, फार्म्स हैं, वेयर हाउसेज हैं। आई नो पीपल जो स्कूल्स लेते हैं, अच्छा, स्कूल करते हैं, फिर देन आपकी रिटेल एरिया है, ऑफिस स्पेसेस हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, देन रेजिडेंशियल प्लॉट है, अपार्टमेंट है। ऑन अ ब्रॉडर टर्म ये सब एक चीज़ कवर होती है। दो इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस कि वो क्या करना चाहते हैं। कुछ लोगों का क्योंकि बिजनेस इस तरह का होता है कि उनको उसी चीज़ को करके, जैसे मैं कई लोगों को मिले, आप बावल की तरफ या हम कहते हैं कि मानेसर की तरफ, तो उनका जो पूरा इंटरेस्ट है, आप उन्हें कुछ भी समझाइए उन्हें अपार्टमेंट समझ में नहीं आता है। तो वेयर हाउस लेंगे। उन्हें वही चीज़ समझ में आती है क्योंकि दोनों के इन्वेस्टमेंट लेवल, रेंटल यील्ड्स आर डिफरेंट। अपार्टमेंट ऑफ कोर्स, अपार्टमेंट या तो हम एंड यूज पर्पस से लेते हैं या हम प्योर प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, आरओआई के लिए नहीं लेते। अगर मुझे एक मंथली आरओआई चाहिए, आई विल गो एंड इन्वेस्ट इन एनी कमर्शियल स्पेस या कमर्शियल एसेट्स। सो ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है कि क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, बट स्टिल आई विल एडवाइज कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बी डाइवर्सिफाइड। राइट। तो आप अगर आपके पास 100 रुपया है एज एन एग्जाम्पल, तो आप प्लीज़ उसको, जो तो मेरा टेस्ट है, जिसका मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसको 60 दे रही हूँ तो मैं 40 से खेल सकती हूँ। राइट, तो मुझे वो करना चाहिए। जैसे इस समय अपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, सो पीछे प्लॉट बहुत अच्छा कर रहा था, तो अगर मेरी बास्केट में मल्टीपल चीज़ें हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट, लाइक आज हम म्यूचुअल फंड कर रहे हैं या हम शेयर्स करते हैं, तो हम उसमें भी तो डेट एंड इक्विटी लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप होता है। स्मॉल कैप होता है, ऐसे ही हम करते हैं। तो अब रियल एस्टेट अपने आप में खुद भी मैच्योर हो गया है और इन्वेस्टर भी। तो माय सजेशन इज कि प्लीज नाउ, क्योंकि देखिए जब तक हम एक नई चीज़ को ट्राई नहीं करते हैं हमें उसके रिजल्ट्स नहीं पता होंगे, हमारे पास उसकी हिस्ट्री नहीं होगी। तो जब हम करेंगे तो हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा और उससे आई थिंक आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी सेफ रहती है। इनफैक्ट मैम इसका आंसर जो आपने बोला, इसका आंसर इसी बुल रन में मिला है। हाँ। इनफैक्ट जब ये बुल रन स्टार्ट हुआ 2000 कोविड के बाद, Yes. तो प्लॉट्स ने एकदम तेजी पकड़ी। हाँ, वो मैंने देखा है कि एक दिन में क्या डील हो रही है और शाम तक वो क्या हो डील रही होती है। थी, ठीक है। फिर प्लॉट्स से वो तेजी मूव हुई कमर्शियल रिटेल की तरफ, फिर वो तेजी मूव हुई रेजिडेंशियल की तरफ, अब वो तेजी धीरे धीरे जा रही है कमर्शियल ऑफिस स्पेस की तरफ। हाँ जी। तो आई थिंक आप सही कह रहे हो, अगर किसी को उस रियल एस्टेट की जर्नी को पूरा एंजॉय करना है या रियल एस्टेट एज ए एसेट पूरा एंजॉय करना है, देन यू हैव टू हैव ऑल द पोर्शंस ऑफ इट इनटू योर बकेट। यस यस, आप ना इसका मतलब बहुत आसान तरीका है एक आम आदमी के लिए समझने का। आज हम सब हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं तो लोग डाइटिशियन भी लेते हैं। तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी डाइट के लिए हम कहते हैं फाइबर भी लोगे, इतना % कार्ब्स भी लीजिए, प्रोटीन भी लीजिए, ये भी करिए। तो इसी तरह और हम फिट भी रहेंगे और ग्रो कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल। तो सेम चीज़ आपकी रियल एस्टेट में है। I agree. I जी। agree. Ma'am, there was a myth that women can't sell real estate, but I think that has changed. आपका क्या कहना है? देखिए एक ना वुमेन में आई विल से कि एक कॉन्सेप्ट, एक assumption है हमारे दिमाग में कि हम सेल्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते सेल्स? क्योंकि भाई सेल्स के लिए पहली बात तो आपको थोड़ा तो आउटगोइंग होना पड़ता है, Right. और दूसरा ये है ऑफ कोर्स, खैर आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं, नॉट ओनली रियल एस्टेट, आपको उसकी मास्टरी के लिए उतनी नॉलेज चाहिए जो आप बोल सको। मुझे लगता है कि एज अ वुमेन हम तो शुरू से बेच रहे होते हैं। Right. जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको बेच रहे होते हैं, बेटा दूध पी ले। हाँ। ठीक है, दूध पिएगा तो बड़ा होगा, बेटा ये खा ले, या जब टीनेज लड़की होगी तो ये खा लो, स्किन ग्लो करेगी। तो हमने अब क्या किया है, हमने उसे बोला कि आप ये एक्शन लो और ये बेनिफिट्स आएंगे। सेम थिंग इज एनी सेल्स, सो वी कैन डू इट, बट यस एक अजम्पशन ये शायद इसलिए है क्योंकि अगर हम पुराना टाइम लेते हैं तो उसमें तो माना ही जाता था कि वुमेन यूज टू बी एक सोफिस्टिकेटेड ऑब्जेक्ट की तरह शायद ज़्यादा देखा जाता था कि ये कैसे बाहर जाके कुछ बोलेगी। तो वो इतना बोला गया हमें कि वो शायद हमारे जहन में घुस गया कि हम नहीं कर सकते। बट आई रियली डोंट अग्री टू दिस फैक्ट, एंड आई थिंक वुमेन कैन डू, एंड व्हाई वुमेन कैन डू रियल एस्टेट बेटर is because especially residential real estate, Right. you relate yourself to it. Absolutely. Absolutely. मैम अब हमने बहुत सारी डिस्कशन करी रिगार्डिंग द पीपल बाइंग इन हियर। मैं जल्दी क्विक मार्केट का एक जस्ट जानना चाहता हूँ। देयर आर 4-5 माइक्रो मार्केट्स इन गुड़गांव, ठीक है, कॉर्कोस एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेस वे, न्यू गुड़गांव, SPR, वे यू सी, मतलब अभी जैसे जो प्राइजेस मूवमेंट हुई है, द्वारका एक्सप्रेस वे इज ऑपरेटिंग एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 20,000 एंड अबव, Golf Course extension has gone up to 20,000 and above, ठीक है, और SPR भी it's around 16-17,000 rupees. Where you see this market going, are these prices sustainable or not? See, as we were talking about real user requirements
Delhi, South Delhi, all segments, all are doing well. So, barring that, where जहाँ ज़मीन ही नहीं बची, जैसे मैं गोल्फ कोर्स रोड की बात करती हूँ, तो वहाँ एक भी चीज़ आ गई तो वो हीरा है, क्योंकि है ही नहीं. तो अगर मैं डिमांड सप्लाई की बात करती हूँ, तो जो पास्ट में भी देखा गया है, क्योंकि अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो है एंट्री पॉइंट, हर लोकेशन का अलग है, हर लोकेशन का अलग है. मतलब आज अगर हम यहाँ पे 35-40 करोड़ की बात नॉर्मली कर जाते हैं गोल्फ कोर्स रोड पे, वो हम बात वहाँ नहीं करते. तो डेफिनेटली देयर इज अ ग्रोथ इन द प्राइसिंग, बट क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली के नज़दीक है और जो हमारा मैक्सिमम माइग्रेट करने वाला इंसान है वो दिल्ली से उसने आना है. तो एक रिलेटिव टर्म होती है कि मेरा इकोसिस्टम आसपास है. थोड़ा वो लगेगा क्योंकि इकोसिस्टम प्लान्ड है. इकोसिस्टम आने में जो भी एक बसने में टाइम लगता है वो लगेगा. लेकिन आई एम लुकिंग एट ग्रोथ एस्पेक्ट ऑन एक्सटेंशन रोड फॉर प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट, जिसे हम बात करें कि सुपर लग्जरी, क्योंकि ये लेगा शेप गोल्फ कोर्स रोड को आगे ले जाएगा. इट्स अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ गोल्फ कोर्स रोड. एंड अगर हम द्वारका एक्सप्रेस की बात करते हैं, वहाँ जो हम अभी बात कर रहे थे, वहाँ हर सेगमेंट होगी और ग्रोथ वहाँ भी होगी. लेकिन वहाँ पे क्योंकि देखिए फ़र्क भी है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम एरिया की बात करते हैं कि कहाँ आप 18 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ मैसिव डेवलपमेंट, बट ग्रोथ एस्पेक्ट्स आर देयर आल्सो. इन टर्म्स ऑफ इफ यू से प्राइसिंग, तो ये लाइक यू कैन से कि ये BMW मर्सिडीज वाला सेगमेंट हो गया, बट देयर आई एम नॉट सेइंग दैट वहाँ आपको होंडा सिटी टू मर्सिडीज सब मिलेगा. सो यू कैन से अ वाइडर रेंज, क्योंकि वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अगेन लैंड स्क्वीज होती जा रही है. ये है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी हमारी अभी गुड़गांव की बहुत स्ट्रॉन्ग है. So I think, ma'am, we touched upon almost all the points. Yeah. I thank you again for coming on our platform and giving a gist about your 25 years of journey in a short span of around 40-45 minutes, and inspiring a lot of people to join real estate. The market has learned a lot from you, and there's a long way to go, and wish you all the best for managing your clients and the portfolio of your clients. So thank you so much, Saurabh. And I'm really, really happy the work you're doing, from corporate to doing your own, becoming in the same corridor where I am. So, and I really feel happy that you're taking it in such an organized manner, and putting non-biased views for viewers, which is very important. It's not that influencer marketing you're doing. Whatever we talked, I think it was by heart, by passion. And we normally talk like this. So, and thank you so much. All the very best to you and to all the women out there. I would say, look at the real estate as a serious career. It is not a place just to time pass or spend 1 or 2 years. This is something where you will never retire. What you need? You only need your passion, your learning, and this keeps increasing. So your experiences will take you a long way. So all the very best. Thank you so much. So we are going to quickly conclude today's podcast. So with the discussion that we had with Anita ma'am today, it's very clear that women are playing a key and pivotal role in real estate now. The percentage of real estate buying has increased where women are taking the decisions. Obviously, the real estate market is going to grow. And as she said, कि अगर आपको जानना है कि गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी क्या है, तो आप NH8 या MG रोड पे सुबह 9 बजे या शाम के 6 बजे जाके खड़े हो जाइए कि कितने लोग उस मार्केट से, मतलब दिल्ली से कितने लोग गुड़गांव आते हैं काम करने के लिए. So that's the volume of the audience that's going to come and join the real estate party of Gurgaon. Thank you, and we will meet you soon with another face on our platform. Do subscribe and follow us on Instagram.